Very good morning to all of you. I, Priyadarshini, on behalf of Global University, welcome you all today on the 6th International Yoga Day. Unlike every year, we are not able to assemble here on the campus premises today, but nevertheless, we are going to celebrate this Yoga Day in spirit and thoughts together on this Yoga Day. The DSW team has organized this yoga workshop today for all of you, wherein we have designed this workshop to understand that how yoga could play a role in our life to be healthy and happy, and how we can include yoga in our lifestyle so that this yoga asanas could help us to have a better and better life. Keeping in mind the theme for this yoga day, Ghar Ghar Mein Yoga, yoga at home, yoga with family. So we have designed this workshop which you can connect with and sitting at your home and take the benefit of understanding yoga and including the yoga asanas in your everyday life and have a healthier and happier life. To start this day, I would like to invite our Honorable Chancellor Sir to give an opening remark. आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं ग्लोकल परिवार की तरफ से सभी देशवासियों व पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ग्लोकल यूनिवर्सिटी पिछले सालों की भांति इस साल भी पूरे गर्व के साथ योग दिवस को मना रही है। आज का जो समय है पूरी दुनिया के लिए संकट की घड़ी है और इसमें मैं सभी देशवासियों से, पूरी वर्ल्ड से अपील करता हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस पूरी दुनिया इसकी चपेट में है और हमें शारीरिक दूरी का ध्यान रखना है और सभी देशवासी अपने घरों में रहकर योग दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाएं, क्योंकि योग जो है वो मानसिक बीमारियों के लिए भी, जो शारीरिक बीमारियां हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा साधन है जिसमें हम अपने घर में रहकर अपने शरीर को अच्छा स्वच्छ रख सकते हैं और कोई आपका इसमें खर्चा भी नहीं होता। मैं इस अवसर पर ग्लोकल परिवार की तरफ से, ग्लोकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बार फिर देशवासियों से, पूरी दुनिया से अपील करता हूँ कि वो पूरे जोश और खरोश के साथ इस योग दिवस को मनाएं और जो योग है इसका पूरा लाभ उठाएं। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी बीमारियाँ मानसिक, शारीरिक आपसे बहुत दूर भाग जाएंगी और इस मौके पर एक राष्ट्रीय शेर भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। या इलाही, हिंदू पैदा कर न मुस्लिम पैदा कर, न सिख पैदा कर न ईसा पैदा कर, जिससे देश खुशहाल हो ऐसे इंसान पैदा कर। Yoga is union of mind, body and soul, union of thoughts, feelings and actions. So let's explore today morning more about yoga through this workshop, which is specially designed for all. Now we have a distinguished speaker, Professor Satish Sharma. Professor Satish Sharma is an alumnus of Delhi University and is a PhD in pharmaceutical sciences. He is a professor in pharmacology and a consultant in yoga and naturopathy as well. He has more than 30 years of experience
In academics and research, he has delivered more than 100 national and international sessions on the topics related to yoga and meditation, stress management and enhancement of immunity through yoga practices. Professor Sharma has been practicing yoga and meditation from 4 decades now. Professor Sharma is an NDDY from International Foundation of Natural Health and Yoga. He has conducted many workshops on yoga and meditation for development of holistic health. I'll invite Professor Sharma for this workshop now. सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि माननीय हम प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा है सन 2015 से। योग क्या है? योग एक जीवन जीने की कला है, एक जीवन जीने की शैली है। पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि आज 21 जून 2020 को हम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ग्लोकल यूनिवर्सिटी के पवित्र प्रांगण में, पवित्र उद्यान में मनाने जा रहे हैं। यह एक कार्यशाला है, वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इस वर्कशॉप का उद्देश्य है कि सभी समाज के वर्ग, सभी पूरे राष्ट्र एवं विश्व के लोग जो योग से भली भांति परिचित नहीं हैं, वे योग को जानें और अपने जीवन में इसे अविच्छिन्न स्थान दें। मित्रों, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है आज के मॉडर्न युग में, जिस युग में हम जी रहे हैं, स्ट्रेसफुल वातावरण में हम जी रहे हैं, कि योग को हम अपने जीवन में नित्य क्रम में शामिल करें। आज का जो वर्कशॉप, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, डॉक्टर प्रियदर्शिनी जी ने आपको बताया कि आज की वर्कशॉप का टाइटल है योगा फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो इसी के माध्यम से, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इस वर्कशॉप को 4 क्रम में बांटा हुआ है। पहले ब्रीफली हम आपको समझाएंगे कि योग विधा है क्या, फिर हम बताएंगे कि योग के नियम क्या हैं, फिर उसके बाद हमारे साथी श्री गुणदीप जी योग इंस्ट्रक्टर हैं, वे आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आसनों का और प्राणायाम का देंगे। उसके माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा कि इन आसन प्राणायाम की हमारे जीवन में क्या महत्वता है। यह योग की विधा बहुत प्राचीन विधा है मित्रों। जैसे ही मनुष्य संसार में आया, उसी समय ईश्वर ने योग को हमें उपहार के रूप में दिया। क्यों? क्योंकि योग से जब हम अपना नित्य क्रम प्रारंभ करते हैं तो पूरा हमारा जो 24 घंटे का जो शेड्यूल है, जो 24 घंटे की दिनचर्या है, वह स्ट्रेसफुली और रिलैक्स वातावरण में हो पाती है। और साथ ही साथ योग एक गाइड, एक गुरु के रूप में हमारा कार्य करता है। जो प्रातःकाल हमने 1 घंटे का जो योग करते हैं हम, उससे हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा आती है। हमारे मस्तिष्क में जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आई, हमारे मस्तिष्क में जो पॉजिटिव थॉट्स आए, हमारे मस्तिष्क में जो सद्भावनाएं जगी, वे सद्भावनाएं हमें पूरे जीवन भर रिलैक्स रखती हैं और स्ट्रेस का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं हो पाता। ये योग विद्या, विधा या जीवन जीने की कला, ये हमारे महान ऋषियों की गहन तपश्चर्या के बाद निकल के आई। यह भारतवर्ष की देन है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महर्षि पतंजलि जी, जिनको हम योग के जनक के रूप में जानते हैं,
उन्होंने इस योग की विधा को, योग की साइंस को एक क्रमबद्ध तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं, यानी 8 चरण 8 अंग। वह 8 अंगों का जो निर्माण है, 8 अंगों की रचना, अष्टांग योग की रचना महर्षि पतंजलि जी ने की। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के माध्यम से हम अपने आप को हम एक भाव, सद्भावना में जागृत करने का प्रयास करते हैं। यम के माध्यम से हमारी सद्भावनाएं जागृत होती हैं दूसरे के प्रति। नियम के माध्यम से हमें तप करने का अवसर मिलता है। इन दोनों के मिश्रण से हम योग की कक्षा में बैठने के लायक बनते हैं, जिससे हमारा अगला क्रम यम नियम के बाद आसन प्राणायाम का प्रारंभ होता है। तो इसमें यम नियम का तात्पर्य ये है कि हमें अपने आप को पवित्र रखना है। जब भी हम योग आसन करने बैठते हैं तो हमें सद्भाव रखना होता है कि हमारे विचार पवित्र हैं। पवित्र भाव से, रिलैक्स्ड भाव से, हैप्पी मूड में हमें योग में बैठना होता है। और जो हमारा नियम है, नियम हम सीखते हैं, जो हम दूसरों, जो सत्साहित्य जिसको हम कहते हैं, स्वाध्याय जिसको हम कहते हैं। स्वाध्याय का मतलब है अपने आप में अध्ययन करना, अपने बारे में अध्ययन करना। ये हम संतों के पास बैठ के सद्विचार जो हमें मिलते हैं, जो हमें अच्छे अच्छे अध्ययन सत्साहित्य से मिलते हैं, उन सब के माध्यम से हम योग की कक्षा में बैठने के लायक बनते हैं। फिर आसन और प्राणायाम और मेडिटेशन। तो आज के समय में आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन की बहुत उपयोगिता है। अब आप समझिए योग है क्या। योग के दर्शन को समझने का प्रयास कीजिए। योग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि योग से हम अपने को दूसरे से जोड़ने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर ये भावना जागृत हो जाती है, डेवलप हो जाती है कि दूसरे सभी मुझसे जुड़ चुके हैं। सारा समाज, हम केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रखते। फिर हमारी सोच व्यापक हो जाती है। हमारी सोच सबके लिए समर्पित भाव से हो जाती है कि ये पूरा विश्व, पूरी विश्व वसुधा मेरी अपनी है, सब मेरे रिलेटिव हैं, सब मेरे साथी हैं, सबको मुझे हेल्प करनी है, मुझे सहायता करनी है। ये सबसे बड़ी फिलॉसफी है जो योग से निकल के आती है। जैसे दूध का सार घृत होता है, तो योग का सार क्या है मित्रों? योग का सार है सद्भावना, दूसरे के प्रति सद्भावना। और योग से हम रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। योग से हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स डेवलप होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो आज के समय में हमने जो अपना मॉड्यूल तैयार किया है, जो हमने वर्कशॉप का मॉड्यूल है हमारा, जो 45 मिनट से 1 घंटे के बीच का, इस मॉड्यूल का उद्देश्य बनाने का ये है कि आप इस युग में जिसमें जी रहे हैं, अभी हम कहते हैं कोविड-19 ईरा। कोविड-19 ईरा की जब बात करते हैं, सभी भयभीत हैं। मॉडर्न युग की जब बात करते हैं, सब डिप्रेशन के शिकार हैं। अधिकांश लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और ये एक ऐसी चीज है जिसको हम कहते हैं कि स्लो पॉइजन, इसको धीमी आत्महत्या कहते हैं। हम धीमी आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। आत्महत्या ये नहीं होती कि हमारी डेथ हो गई वही आत्महत्या है, हमने सुसाइड कर लिया वही आत्महत्या है। आत्महत्या का मतलब ये है कि हमारी आत्मा हीन हो गई, हमारी आत्मा कुछ कर नहीं पा रही, हम दूसरे के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे, ना अपने बारे में सोच पा रहे। आज हम स्ट्रेसफुल वातावरण में जी रहे हैं क्योंकि मॉडर्न युग की डिमांड है। आप जानते हैं ग्रीड, लस्ट, कंपटीशन, इसके कारण आप डेली न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं। अभी रिसेंट भी आपने देखा किस तरह से डिप्रेशन का जो है, जो चरम सीमा पर जब डिप्रेशन, स्ट्रेस पहुंचता है तो सुसाइडल टेंडेंसी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। फिर इंसान कुछ आगे सोच नहीं पाता। तो ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस को हमें समझना होगा। योग हमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस के बीच में एक थिक लाइन डेवलप करता है। एक थिन लाइन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस की, लेकिन जब योग नित्य हम करते हैं तो इतनी थिक लाइन होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन होती है कि वो पॉजिटिव स्ट्रेस हमारे ऊपर जो है नेगेटिव स्ट्रेस बन के हावी नहीं हो पाता। तो योग की फिलॉसफी यही है कि आज के इस कोरोना युग में, आज के इस मॉडर्न युग में हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या देखना होगा? स्ट्रेस ना हो।
और इम्यूनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मित्रों? इम्यूनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है कोई तो स्ट्रेस है। जब हमारे अंदर स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस आएगा, कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेस तो आना ही है। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्ट्रेस आना है, लेकिन वह स्ट्रेस एक लिमिट तक रहेगा जो हमें मोटिवेट करे, बहुत थोड़े लेवल तक, तब इसी को स्ट्रेस, वो स्ट्रेस को मल्टीप्लाई ना होने दें। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हम अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, हमारे बॉस हैं, हमारे अलग अलग बॉस हो सकते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। ये सब तो कहीं हमें दुर्व्यवहार मिलता है, कहीं हमें बॉस के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं होता है, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हमें हेल्प नहीं करते हैं काम करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमारा एक ऐसा वातावरण हमारे सामने होता है जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। हम अनहेल्दी एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, क्योंकि अनहेल्दी एनवायरनमेंट इसलिए हुआ कि सब नेगेटिव चिंतन चल रहा है। दूसरा कोई हमें चाहता नहीं कि हम आगे बढ़ें, सब हमें परेशान कर रहे हैं, जान के या अनजाने में। क्यों? क्योंकि वे खुद भी परेशान हैं, उनको पता नहीं है कि क्या सही है। जब योग करते हैं हम, तो योग से हमें एक रास्ता दिखता है। मित्रों, योग एक सुंदर पाथ है, एक सुंदर रास्ता है, फूलों भरा रास्ता है, ये शांति का रास्ता है, सुंदरता का रास्ता है। लेकिन इस रास्ते में कंकड़ भी है, पत्थर भी है, सब कुछ है, लेकिन उस पत्थर से बच के हम अपने आप ही सुंदर रास्ता बनता चला जाता है। हम एक सुंदर रास्ता बनाने में कायम हो, हम जो है सफल हो पाते हैं। कैसे? क्योंकि योग जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, कमल खिलता है, कमल सबसे सुंदर पुष्प है, कमल का हम एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन कमल गंदगी में ही खिलता है। आप देखिए, तालाब कीचड़ के अंदर होता है, लेकिन कीचड़ से अपने आप को अलग रख पाता है वो। आज समाज की गंदगी हमें टच नहीं कर सकती। गंदगी से तात्पर्य है जो नेगेटिव विचार, किसी ने हमें अपशब्द कह दिया। आप जान रहे हैं, यदि हम कंपटीशन देखते हैं तो हम देखते हैं हमें वो सम्मान नहीं मिला, और केवल यही सोचते सोचते हम स्ट्रेस को इतना मल्टीप्लाई कर देते हैं कि डिप्रेशन की एंड स्टेज, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है मित्रों। तो जब हम योग करते हैं तो योग से हमें एक सुंदर पथ मिलता है, कमल के फूल की तरह सुंदर रास्ता मिलता है, और उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम रिलैक्स्ड ही रहते हैं, हम टेंशन में नहीं आ पाते जब योग करते हैं। योग में जीवन जीना होता है। योग का मतलब ये नहीं है कि हमने अभी आसन कर लिए, अभी आपके समक्ष आसन दिखाए जाएंगे। योग की पूर्णता इसमें है कि यम और नियम के माध्यम से जो हमने सद्भाव सीखे, जो हमने तप सीखा, वो जब योग के साथ मिल जाता है तो योग एक सजीव बन जाता है। योग के अंदर एक एनर्जी आ जाती है, योग के अंदर एक प्राण आ जाता है, योग के अंदर ऊर्जा आ जाती है। ये योग का तात्पर्य है। आज के समय में संजीवनी बूटी, मैंने अभी हाल ही में एक वर्कशॉप में संबोधन दिया था, उसमें यही कहा था, योगा एज ए पनेशिया टू एनहांस इम्यूनिटी एंड पॉजिटिविटी। आज की वर्कशॉप का भी हमारा यही उद्देश्य है कि योग के माध्यम से हेल्थ भी बनती है और हैप्पीनेस भी है, क्योंकि जब हम योग करते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब हम अलग अलग आसन देखेंगे तो उस क्रम में आपको समझाया जाएगा कि कैसे इस विलक्षण विधा के द्वारा हम अपने आप को रिलैक्स रख पाते हैं। और एक और मैं बताना चाहूँगा कि जब हम योग करते हैं तो हम जो 12 घंटे में काम करते हैं वो काम 36 घंटे के बराबर होता है, और जब योग नहीं करते, स्ट्रेसफुल जीवन में जब कार्य करते हैं तो 12 घंटे में जो कार्य करते हैं वो 4 घंटे का काम हो पाता है। तो आप समझिए, 4 घंटे और 36 घंटे, यानी केवल प्रातःकाल 1 घंटा योग कर लेने से हमारा 12 घंटे का कार्य 36 घंटे चलता है। आप देखिए, और वो भी स्ट्रेस फ्री जीवन, कोई डिप्रेशन नहीं है, सबके प्रति सद्भावना जागृत होती है, अच्छा भाव है, सारे रास्ते खुल जाते हैं, सब जगह अपने आप सम्मान मिलने लगता है। यदि कोई नेगेटिव वाइब्रेशन वाला हमारा अपमान करता है, उससे हम प्रभावित नहीं होते, कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं आती है, हम समभाव में जीते हैं, हमेशा हमारे चेहरे पर मुस्कान बनी होती है और बहुत ही अच्छा हमें लगता है। महर्षि पतंजलि का हमने बताया अष्टांग योग की ही आवश्यकता है आज के समय में, और अष्टांग योग से रिलेटेड आसन और प्राणायाम के बारे में हम आपको समझाएंगे। तो अब हम अगला चरण प्रारंभ करते हैं कि योग करें कैसे।
देखिए 100 में से 99 लोगों को नहीं पता है, देखिए, कि योग कैसे करें। पूछते हैं हमसे, यूनिवर्सिटी में भी पूछते हैं लोग, समाज में भी पूछते हैं, परिवारिक जन भी पूछते हैं, फैमिली जन भी पूछते हैं कि सर योग करते कैसे हैं। सर ये प्राणायाम, ये जो कपालभाति है, ये आसन है या क्या प्राणायाम है? लोगों को नहीं पता मित्रों। अभी क्यों नहीं पता है? क्योंकि मॉडर्न युग में हम अपने लिए 1 मिनट का भी समय नहीं दे रहे हैं। हम सोचते हैं योग तो बेकार की चीज है, या सोचते हैं कि योग चलो बाद में कर लेंगे, पहले दूसरा काम कर लें, ऑफिस का काम कर लें, घर का काम कर लें, हम आगे बढ़े, फेसबुक का काम कर लें अपना, फेसबुक पे लाइक्स दे दें हम, ठीक है। अब देखिए फेसबुक से भी स्ट्रेस हो रहा है। फेसबुक पे अगर लाइक्स और कमेंट्स नहीं आ रहे तो हम स्ट्रेस में जी रहे हैं। हम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यदि हमें सफलता नहीं मिली, दूसरों ने हमको नहीं पूछा, यदि हमारे को लाइक्स नहीं आए और हमारे को किसी पत्रिका वाले ने फोटो नहीं डाला, किसी हमको इनाम नहीं मिला, किसी अवार्ड में नहीं गए, तो हमारे अंदर डिप्रेशन आ जाता है। यदि ऑफिस में भी हमारी प्रेज नहीं करी किसी ने तो डिप्रेशन आ जाता है। मेरे को कई लोग बोल चुके हैं कि सर हमें अप्रिशिएशन नहीं मिलता, सर हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलता। अब मैं पिछले 30 साल से एडमिनिस्ट्रेशन में ही हूँ, एज डायरेक्टर, डीन, अब वीसी हूँ। आप सबके शुभ आपकी शुभभावनाओं से मैं वीसी बन चुका हूँ इस यूनिवर्सिटी का। तो भाव एक ही है कि मैं एक इंसान हूँ, मेरा कार्य सेवा है। तो ये इस तरह की सोच डेवलप हो जाती है। फिर हम ईगो नहीं रखते हैं कि अब ईगो अहम भाव में जीते हैं तो स्ट्रेस आता है। तो मैंने ये आपको समझाना इसलिए आवश्यक समझा कि जिससे आप योग की इंपॉर्टेंस समझे मित्रों। योग की आवश्यकता, रोल, इंपॉर्टेंस बहुत ही जरूरी है। योग आधा घंटा करें, हम फेसबुक में 1 घंटा दे देते हैं, हम मोबाइल पे 2 घंटे एक्स्ट्रा दे देते हैं, और नेट हमारा जो वर्क पॉजिटिव आउटपुट है वो रियली नेगेटिव में जाता है, जीरो में नहीं जाता। क्योंकि हमारे जो विचार हैं 24 घंटे में हजारों विचार, आप सोच सकते हैं 1 मिनट के अंदर 50 से 100 विचार आ जाते हैं, सारे विचार नेगेटिव होते हैं। उन विचारों से हमारी ऊर्जा खत्म होती है, हमारा हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि नेगेटिव विचार से ही हार्ट अटैक होता है मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेस की चरम सीमा हो जाती है। अब योग के रूल समझ लें। योग खुले वातावरण में करना चाहिए। आज हम योग की कार्यशाला में बैठे हैं, आपके समक्ष देखिए सुंदर उपवन में हम बैठे हैं, ग्रीनरी है, प्राणवायु है, ऑक्सीजन है। जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होगी योग का प्रभाव अच्छा होगा। फिर दूसरा क्रम आता है, पहला तो आपने क्या देखा, खुले वातावरण में योग करें। दूसरा हम देखिए यहाँ पर एक मैट पर बैठे हैं, ये मैट कॉटन की बनी हुई है, कॉटन के आपकी बिछावन हो। वैसे पुराने समय में आपने देखा कुशा पर बैठते थे लोग, क्योंकि वो इंसुलेटर है, आराम से जो है हम उस पर बैठ सकते हैं, इसलिए वो आराम से उस पर बैठते हैं। और हमारी जो वाइब्रेशन, हमारी पॉजिटिव एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन कहीं इधर उधर नहीं जाती, हमारे अंदर रहती है। ये भाव है कॉटन पर बैठने का, और एक अच्छा कपड़ा होता है कॉटन। हमारे अपने कपड़े भी कॉटन के होने चाहिए। जब हम योग कर रहे हैं तो हमने कईयों को देखा है इस तरह की सिल्क पहन लेंगे, बिल्कुल पतले कपड़े, बिल्कुल शरीर से चिपके हुए कपड़े पहन लेंगे, तो ये भी गलत है। हम देखिए लूज कपड़े पहने हुए हैं, लूज। जब योग करते हैं तो लूज कपड़े होने चाहिए, जिससे योग करने में आसानी रहती है और प्राणवायु और ऑक्सीजन का प्रभाव अच्छा रहता है। तो आपने 3 चीजें देखी, क्लीन एटमॉस्फेयर, साफ एनवायरमेंट, ग्रीनरी का एनवायरमेंट, पेड़ पौधे हो तो और अच्छा है, शांत वातावरण। अगला है शांत वातावरण, यहाँ शांति ही शांति है, हमें मन लग रहा है। आपको ये अच्छी बातें, माइंड में अच्छी बातें अपने आप आती है जब शांत वातावरण होता है। और अगला क्या ध्यान रखना है, अगला ध्यान रखना है कि खाली पेट ही योग करते हैं। योग भरे पेट नहीं किया जाता, वो गलत है, वो नॉन वैज्ञानिक है, वो अवैज्ञानिक है, नॉन साइंटिफिक है, अनसाइंटिफिक है। साइंटिफिक तरीका क्यों है योग करने का? खाली पेट जब होते हैं तो हमारे जो अंग अवयव हैं उनसे हम रक्त का संचार अच्छा करा सकते हैं। जो भी हम योग में हम कार्य करेंगे अभी आसन में, वो बड़े सही तरीके से होते हैं और उसका उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता। कई लोग भरे पेट योग भी करने लगते हैं, हमने देखा भरे पेट योग करने से तो हमारे को हार्ट अटैक तक की संभावना हो जाती है मित्रों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला एक और महत्वपूर्ण है कि योग किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। योग बच्चे से लेके वृद्ध तक सब कर सकते हैं। कुछ आसन ऐसे हैं जो हम बताएंगे हार्ट के पेशेंट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा हार्ट का ही होता है। हार्ट का पेशेंट ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है, उसके हार्ट पे ब्लड सर्कुलेशन का लोड, स्ट्रेस का लोड बहुत ज्यादा होता है, और आसन करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो हार्ट को हमको देखना है कि कौन से आसन नहीं करने हैं।
जब अगर हमको ब्लड प्रेशर है तो। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग योग कर सकते हैं। और योग के जब कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी, कोई भी जबरदस्ती नहीं हो। जितना हम अभी आपके सामने हमारे योग गुरुजी, आपके हमारे फ्रेंड योग करके दिखाएंगे, आसन करेंगे, आप ये मत देखिए कि वो तो इतना अच्छा आसन कर रहे हैं। और आप जब पहली बार योग करेंगे, इस योग की कार्यशाला के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही है कि ये एक मॉड्यूल है आपके लिए, एक मॉड्यूल है जिसको समझ के और इसके ऊपर श्रद्धा करके सुबह प्रातः से 4 बजे से लेके 7 बजे तक योग अवश्य कर लेना चाहिए। आज मॉडर्न युग में इसलिए मैंने 7 बजे का समय दिया, अदरवाइज 5 से 6 का सबसे अच्छा समय होता है योग करने के लिए। कोशिश करें 5 से 6 के समय तक, प्राणवायु बहुत मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, अत्यधिक लाभ मिलता है। तो योग के नियम आपने देखे। अब योग का आप जब योग करेंगे हमारे साथी जी, तो उस समय आप देखना कि हम पूरा योग तो कर नहीं पा रहे, जबरदस्ती करेंगे कुछ लोग। जबरदस्ती नहीं करनी, किसी भी आसन के साथ कभी जबरदस्ती मत करो। धीरे धीरे आसन को आगे बढ़ाइए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब हम अपना तीसरा क्रम प्रारंभ करते हैं, आसन और प्राणायाम का। सर्वप्रथम हम आसन करेंगे। तो ये आसन हम आज जो करवा रहे हैं वो इसलिए करवा रहे हैं कि आप अपने नित्य क्रम में इसे शामिल करें और प्रतिदिन इन आसनों को करें, जिससे आपका शरीर मन स्वस्थ रहेगा। आइए हम सर्वप्रथम खड़े होने वाले आसनों से प्रारंभ करते हैं। आराम से खड़े हो जाएंगे। आसन जो भी करते हैं उसमें कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है। पहला आसन हम करेंगे ताड़ासन। तो ताड़ासन में सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। पैरों के बीच में 2 से 4 इंच का फासला रहेगा। इस तरह से आप सांस जब स्ट्रेच किया, हाथों पूरा स्ट्रेच करते हैं। इसमें ध्यान रखते हैं कि हम जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ही इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें दिखेगा। ये 3-4 आसन जो हम कराएंगे खड़े होने वाले, जब पूरे आसन हो जाएंगे तब हम बताएंगे कि इनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। जनरल में हम बता दें कि जहाँ जहाँ भी प्रेशर पड़ रहा है, आप अनुभव कर सकते हैं वहाँ के सभी ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। जैसे जॉइंट्स हमारे, अब हमने हाथ अपना स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है, जितना स्ट्रेच अंगुलियों में फंसा के हम दोनों हथेलियों को जब स्ट्रेच कर रहे हैं, आसमान की तरफ हमारी हथेलियां हैं, और जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमारा जो भी जॉइंट्स के अंदर टॉक्सिन्स हैं वो सब रिलीज हो रहे हैं, निष्कासित हो रहे हैं, और हमारे जो आगे रोग की संभावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। हमारे कंधे मजबूत होते जा रहे हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, जो शोल्डर जॉइंट्स हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं। हमारे नेक, जो स्टिफ नेक थी, वो रिलैक्स होके और एकदम बिल्कुल लचीलापन आ जाता है। तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नेक, हमारे कंधे, ये सब फ्लेक्सिबल बन रहे हैं, सब के अंदर लचीलापन आता जा रहा है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे अपनी नॉर्मल मुद्रा में। अब हमारे साथी जी एक बार पुनः इसका अभ्यास करके बताएंगे आपको। आप इस आसन में आगे चल के अगर कर सकते हैं तो आप पंजों के बल भी खड़े हो सकते हैं। पंजों के बल खड़े हो गए, आप देखिए, आप अपनी पैरों की उंगलियों से लेके पूरा बॉटम टू टॉप स्ट्रेच कर रहे हैं अपने आप को। पूरा स्ट्रेच कर दिया आपने, देखिए, ये देखिए आप। फिर धीरे धीरे वापस आके धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने नॉर्मल क्रम में आ जाएंगे। अब अगला आसन करेंगे आप ऊर्ध्वस्तोत्तानासन। ऊर्ध्वस्तोत्तानासन में धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जैसे ताड़ासन हम कर रहे थे। सांस भरते हुए हमने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लिया और स्ट्रेच करके हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ जाएंगे। अपने आप को धीरे धीरे लेफ्ट में ले जाएंगे। जितना आप लेफ्ट में जा सकते हैं
जाइए। आप देखिए कितना सुंदर ये चित्रण है और आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा जब आप कर रहे होंगे, क्योंकि इससे हमें परेशानी अवश्य हो रही है। धीरे धीरे वापस आएंगे सांस लेते हुए। जब स्ट्रेट होते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति, फिर अब दाहिनी तरफ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। दाहिनी तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। अब इसमें हाथ ऐसे मोड़ने नहीं है आपको, कई लोग ऐसे हाथ मोड़ लेते हैं, मोड़ने नहीं है, आपको हाथ दोनों स्ट्रेच रखने हैं। इससे आपकी कमर बहुत लचीली बन जाती है। हमें बैक एक सताता है, बैक एक से हम परेशान हैं, लोअर बैक एक ये दूर होता है। इससे कमर की एक्स्ट्रा चर्बी इससे कम होती है और हमारे जो अंग अवयव हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बहुत शक्तिशाली बनते हैं। धीरे धीरे रुकेंगे, रुकने के बाद नॉर्मल आएंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को फिर नीचे ले जाएंगे। नॉर्मल मुद्रा में कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। कोई भी एक आसन करने के बाद कुछ समय हमको नॉर्मल मुद्रा में रुकना चाहिए, क्योंकि सांसों को नॉर्मल करना आवश्यक है। जब सांस नॉर्मल हो जाती है फिर पुनः इसका अभ्यास करेंगे। अब आपको एक बार पुनः ऊर्ध्वस्तोत्तानासन का अभ्यास पुनः करके दिखाया जा रहा है। पैरों के बीच में इसमें फासला रखा जाता है। 10 से 12 इंच का फासला रख लेते हैं इसमें। धीरे धीरे ऊपर स्ट्रेच हो गए सांस लेते हुए। स्ट्रेच होने के बाद जब लेफ्ट में आ रहे हैं तो सांस छोड़ते जाएंगे। वहां कुछ देर रुकते हैं, कुछ देर रुकते हैं और अपना महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ इसका प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर पड़ने का तात्पर्य ये है कि वे अंग अवयव में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने वाला है, सारे हार्मोन्स पॉजिटिव आने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स अच्छे सीक्रेट हो रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मसल्स हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जो भी अंग अवयव, चाहे लिवर है, चाहे किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, पेट के ऑर्गन्स, और आपने जब देखा होगा अभी इस आसन को करते समय तो लंग्स के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। आज कोरोना के युग में हमने ये मॉड्यूल बनाते समय ध्यान रखा है कि जिसको हम कहते हैं कि इस भय युक्त वातावरण से कैसे अपने आप को फ्री करें। मित्रों, जब हमें अंदर से महसूस होता है कि हम शक्तिशाली हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम सेफ हैं, तो हमारा भय चला जाता है। अब मैं प्रतिदिन योगा करता हूँ, हमारे साथी भाई योगा करते हैं, जो भी योग कर रहे हैं वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मित्रों, हमारी पॉजिटिविटी, विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लंग्स तो मजबूत हैं। सबसे पहला प्रभाव कोरोना वायरस का जो पड़ता है वो लंग्स के ऊपर ही पड़ता है। जब हमें पता है कि हमारे लंग्स शक्तिशाली हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और हम देखते हैं कि वृद्धावस्था में ध्यान रखने की आवश्यकता क्यों कही गई है कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनके लंग्स और हार्ट वीक हो जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि इसका इफेक्ट कहीं भी, आप देखिए रिसर्च में देखा गया है कि कोरोना वायरस बच्चों को भी, बड़ों को भी, वृद्धों को, किसी को भी इफेक्ट कर सकता है जिसकी इम्यूनिटी कम है। अस्थमैटिक पेशेंट हैं, उनको अटैक क्यों ज़्यादा करता है ये? क्योंकि उनका ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर नहीं है। लेकिन अभी आपने ये पहला आसन देखा, इसमें हमारे लंग्स को भी प्रभाव पड़ रहा है, लंग्स शक्तिशाली बनते जाते हैं इस आसन से। तो ये आपने 2 आसन किए। अगला आसन कटी चक्रासन करेंगे। अब आप कटी चक्रासन, ठीक है, कटी कमर को कहते हैं। कटी चक्रासन में आप 10 से 12 इंच का फासला ले लेंगे, जैसे हमारे साथी जी कर रहे हैं उस तरह से। दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे, बिल्कुल इस तरह से सामने ले आया। अब धीरे धीरे आप लेफ्ट की तरफ अपना सेम फासला लेते हुए हाथों को केवल स्ट्रेच पूरी तरह करते हुए, अपनी बाजू मुड़ेंगी नहीं, इस तरह अपनी बाजू बिल्कुल स्ट्रेच रहेंगी, उंगलियों तक स्ट्रेच रहेंगी और पूरी कमर भी हमारी देखो घूमती जा रही है। कमर और उससे ऊपर का पोर्शन घूमेगा, लेकिन मित्रों पैरों में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पैर बिल्कुल वहीं शांत रहेंगे। कमर से नीचे का पोर्शन उसी अवस्था में रहेगा। पीछे की तरफ आप देखेंगे, अपना मुंह भी पीछे की तरफ ले जाएंगे, फेस भी, और कुछ देर वहां रुकेंगे। फिर धीरे धीरे रुकने के बाद नॉर्मल सामने की तरफ आएंगे। आपके हाथ भी नहीं मुड़ने चाहिए, आपका शरीर भी स्ट्रेट रहना चाहिए,
ये इसमें ख्याल रखना है आपको। अब इसी क्रम में दाईं ओर धीरे धीरे जाएंगे आप। दोनों हाथ फैले हुए हैं, दोनों हाथ समानांतर हैं, दोनों हाथों के बीच में फासला वही रहेगा। जितना मुड़ सकते हैं अपने आप को मोड़ें। ये आसन कमर की चर्बी कम करता है, हमारी कमर पर एक्स्ट्रा फैट है उसको कम कर रहा है ये आसन। हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन को शक्तिशाली बना रहा है, हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर कर रहा है ये आसन। हमारे कंधे मजबूत हो रहे हैं, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, लंग्स और हार्ट के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, वे शक्तिशाली बन रहे हैं। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे अपनी सामान्य अवस्था में। अब हाथ को नीचे लगा देंगे अपने बाजुओं में, सीधे खड़े हो जाएंगे। 10 सेकंड का विश्राम देंगे, क्योंकि हमने बताया पहले भी पूर्व में कि जो भी हम आसन करते हैं दूसरा आसन या वही पुनः आसन रिपीट करने से पहले 5 से 10 मिनट का रिलैक्सेशन जरूर होना चाहिए, नहीं तो हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब हम सामान्य स्थिति में आ गए। कटी चक्रासन का वही क्रम आपके सामने फिर से दोहराया जा रहा है। तो हमारे साथी भाई दोबारा से कटी चक्रासन कर रहे हैं। पैरों के बीच में फासला आप देख रहे हैं 10 से 12 इंच का है। अपने हाथों को समानांतर ले आए जमीन से, कंधों की सीध में ले आए हाथों को। धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ आप देखिए हाथ जा रहे हैं, पूरा बाजू हाथ बिल्कुल सीधे हैं, स्ट्रेच रहती है। जब स्ट्रेच रहेंगे तो प्रभाव अच्छा होगा। कोई भी आसन पे जब आपको लग रहा है प्रेशर है, कोई प्रेशर पड़ रहा है, स्ट्रेच है, और जर्क से कोई आसन नहीं करेंगे आप। जर्क नहीं लगना चाहिए आसन में। आराम से सहज मुद्रा में कुछ देर वहां पर रुके और धीरे धीरे वापस आ रहे हैं सामने की तरफ। अब राइट की तरफ जा रहे हैं हाथ। कमर और उससे ऊपर का सर तक का पोर्शन हाथों के साथ जा रहा है। बिल्कुल देखिए फेस बिल्कुल पीछे की तरफ चला गया है। इससे नेत्र ज्योति भी स्ट्रांग होती है, इससे हमारे चेहरे पर कांति आती है, कंधे मजबूत होते हैं, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम जिससे हमें एनर्जी मिलती है फूड के माध्यम से, जिससे हमारा फूड हमारे शरीर को पोषक तत्व देता है, वो हम सबका 99% लोगों का खराब है। इसको ठीक करने के लिए ये जो हमने अभी 3 आसन किए, तीनों आसन का बहुमूल्य योगदान है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मलाइज होने के क्रम में। ये अंतिम आसन है आपका त्रिकोण आसन। ठीक है, त्रिकोण आसन में आप पैरों के बीच का फासला बढ़ा देंगे। ज्यादा से ज्यादा फासला होगा तो अच्छी तरह कर पाएंगे आप। और आप राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे आसमान की तरफ, लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ लाएंगे, अपने शरीर को कमर से लेके बेंड कर देंगे लेफ्ट की तरफ। आसमान की तरफ देखेंगे, कुछ देर ये रहेंगे। धीरे धीरे अब राइट में भी ऐसे ही करना है। राइट में लेके जाएंगे, बाएं हाथ ऊपर आ जाएगा, दाएं हाथ नीचे आ जाएगा, आसमान की तरफ फेस होगा हमारा। कुछ देर रुकेंगे हम। धीरे धीरे सामान्य मुद्रा में आ जाएंगे, हाथों को फैलाते हुए, पैरों को धीरे से अपने नॉर्मल स्थिति में, दोनों हाथों को अपने बगल में लाके नॉर्मल स्थिति आ जाएगी। अब यही आसन को दोबारा से रिपीट किया जा रहा है आपके सामने। योगाचार्य जी इस आसन को रिपीट करेंगे, फिर देखिएगा ध्यान से। इससे भी हमारे जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा चर्बी है, जो हमारी बॉडी को एक डेफिनेट शेप मिलती है इस आसन से। जब ये आसन हम करते हैं तो एक अच्छी शेप है, जहाँ एक्स्ट्रा चर्बी है वो दूर हो जाती है, शरीर का पोस्चर सही हो जाता है, हमारा शरीर लचीला बन जाता है, जो हमारी कमर है वो लचीली बन जाती है, और इससे भी डाइजेस्टिव सिस्टम और लंग्स के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है इस आसन से। चेहरे पर कांति आ जाती है।
अब आपने ये सारे आसन खड़े होने वाले करें। इन आसनों का सूक्ष्म बता दें हम आपको, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। जो भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज की शिकायत रहती है, ज्यादातर लोगों को गैस बनती है, बदहजमी रहती है, शौच साफ नहीं आता है, तो प्रातः काल भी 2 गिलास पानी पी लें उठने के बाद। और जिस क्रम में हमने ये आसन बताए, त्रिकोण आसन को छोड़ के जो हमने ऊपर के आसन बताए थे, उन तीनों आसनों को जो हम करते हैं, पहले वाले 3 आसन क्रम से जैसे बताए, तो हमारे जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स हैं, इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रैक्शंस हैं, वो सब रेगुलर हो जाती हैं, नॉर्मलाइज हो जाती हैं। क्योंकि जो हमारी कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं, हमारे मूवमेंट्स इंटेस्टाइन के कम हो जाते हैं, जो हमारे एंजाइम्स इंटेस्टाइन के कम सीक्रेट होते हैं, डाइजेस्टिव जूस कम सीक्रेट होते हैं, तो हमें अपच की शिकायत हो जाती है और कब्जी की शिकायत हो जाती है। ये 3 आसन 2 गिलास पानी पीने के बाद करते हैं जब हम 2 बार, तो आप देखिएगा और फिर थोड़ा सा टहल लेते हैं 50 कदम, फिर देखिए आप बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन आपका धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो ये हमारे आसन रहे खड़े होने वाले। इसी में कुछ सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। एक खड़े होकर सूक्ष्म क्रिया हम करेंगे आपके सामने, 2 करेंगे। एक कोहनी की सूक्ष्म क्रिया, तो ये सूक्ष्म क्रियाओं का उद्देश्य होता है जो हमारे जॉइंट्स हैं, ये जो जॉइंट्स हैं हमारे, ये जॉइंट्स जहाँ भी होते हैं खाली स्पेस होता है, और इनमें जब हम खाते हैं एसिडिक फूड, तला भरा हुआ भोजन करते हैं, तो ये जॉइंट्स में टॉक्सिन के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और हमें आर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है, जॉइंट पेन रहता है, जिससे हमारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते, ये इसमें स्टिफनेस आ जाती है। तो सूक्ष्म क्रियाओं का उद्देश्य है कि हमारे जॉइंट्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहते हैं, इनमें कोई टॉक्सिन डिपॉजिट नहीं हो पाता है। तो कोहनी की सूक्ष्म क्रिया, कोहनी का जो जॉइंट है, इस जॉइंट के लिए हम सूक्ष्म क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे हम मोड़ते हुए ऊपर की तरफ इन अपने हाथ की उंगलियों को उन कंधों से टच कर देंगे। थोड़ी देर रुक के धीरे धीरे फिर फैला देंगे। ये क्रिया 10 बार कीजिएगा, 10 बार कम से कम करेंगे तो इससे प्रभाव मिलेगा। तो हम इस क्रिया को करते हैं 10 बार, तो हमारे जॉइंट्स जो हैं, ये जो हमारी कोहनी का जॉइंट है, ये खुला रहता है और इसमें कोई टॉक्सिन डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कोहनी में कभी दर्द होता है किसी के, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ दर्द होता है, तो ये दर्द आपको नहीं सताएगा फिर, क्योंकि आपके जॉइंट्स में लचीलापन आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, वहाँ की एक्सरसाइज हो रही है आपकी, सूक्ष्म व्यायाम से हमारी एक्सरसाइज होती है। इस सब एक्सरसाइज की चीजें हैं। तो ये आपके कोहनी के आपके क्रम है। कोहनी के क्रम के बाद आपका देखिए, ये भी एक कलाई है आपकी, इस कलाई का भी सूक्ष्म व्यायाम होना चाहिए। मतलब आपको तो लगना चाहिए ना कि ये भी आपकी सही रहे, कलाई में भी दर्द होता है, तो हम कलाई का भी व्यायाम करते हैं। पहले हम बिल्कुल सीधा ऐसे रख लेते हैं, बिल्कुल समानांतर, फिर हम इस तरह से मोड़ेंगे, लेफ्ट की तरफ भी मोड़ सकते हैं अपनी कलाई को, फिर वापस सामने लाके फिर राइट की तरफ कलाई को मोड़ेंगे। देखिए हाथ सीधा है, इधर कलाई मुड़ रही है, हाथ नहीं मुड़ेगा इसमें, अपना शरीर का सारा भाग स्ट्रेट रहेगा, पूरा हैंड स्ट्रेट रहेगा, पूरा बाजू, इधर कलाई मुड़ रही है लेफ्ट और राइट, कलाई मुड़ रही है लेफ्ट और राइट, ठीक है ना। अब हम हथेली को सीधा कर लेते हैं, अब ऊपर और नीचे करेंगे, ऊपर और नॉर्मल फिर नीचे। ये हथेलियों के जो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट जिसको कहते हैं, उसकी एक्सरसाइज है, इसको हम सूक्ष्म योग क्रियाएं कहते हैं। ये भी आप 10 बार कीजिएगा। ये जब सूक्ष्म योग क्रियाएं करते हैं अलग अलग जॉइंट्स की, तो हमारे जॉइंट्स खुलते हैं, उसमें कोई टॉक्सिन डिपॉजिट नहीं हो पाता है और हम आराम से अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं एंड तक। तो ये आपकी रिस्ट की है। अब हम हथेली को बंद कर लेते हैं, अंगूठा अंदर करके हथेली बंद कर ली हमने। अब इसको हम वहीं घुमाते हैं दोनों तरफ, ठीक है ना, ऊपर नीचे, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। केवल आपको रिस्ट घुमानी है, केवल आपको अपनी रिस्ट घुमानी है, ठीक है ना, रिस्ट घुमानी है आगे पीछे, मतलब रिस्ट ऊपर नीचे। ये रिस्ट आप ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाएंगे 10 बार 20 बार, तो ये आपकी रिस्ट की जॉइंट सही रहेगी, लचीली रहेगी। अब ये आपके खड़े होने के आसन हो रहे। अब हम बैठ जाएंगे आराम से सहज भाव में। अब हम दंडासन
बैठ जाएंगे, सीधे पैरों को आगे करते हैं, आराम से बैठ जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस आसन में बैठते हुए अपने जो पैर की एड़ी और पंजों के आसन करेंगे। आराम से बैठ के हाथों को बाजू साइड में ले आएंगे, अपने हथेलियों को जमीन पर टिका देंगे, सहज भाव से हम बैठ जाएंगे। और अब हम पंजों की सूक्ष्म उपयोगी क्रिया है, ये पंजे देखिए आगे की तरफ गए, पंजे पीछे की तरफ आए, पंजे आगे जा रहे हैं और पंजे पीछे की तरफ आ रहे हैं। ऐसे आप 10 बार कीजिए। ये पंजों का आप आसन चल रहा है, पंजों का चल रहा है, इस तरह 10 बार कर लिया आपने, ठीक है। अब एड़ी का जो जॉइंट है आपकी, उस जॉइंट के लिए आप क्लॉकवाइज क्रम में धीरे धीरे ऐसे घुमाते रहेंगे, धीरे धीरे। अब दोनों पैरों को मिला के कर सकते हैं। पहले दोनों पैरों को मिला लिया और आप देखिएगा आराम से स्ट्रेच करेंगे एड़ी, पूरे आपका पंजा, पूरा पैर है जो एड़ी से पंजे तक का, पूरे को क्लॉकवाइज करेंगे पहले, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे आप 10-10 बार। दोनों क्रियाएं आप करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार ये क्रियाएं आपकी रहेंगी। जब 10-10 बार ये क्रियाएं कर लेंगे तो पैरों के बीच में फासला दे लेंगे, पैरों के बीच में। फिर अलग से, अभी तो पैर जुड़े हुए थे, अब पैर अलग से हुए हमारे, तो पैरों को अलग करके अब करेंगे। आप देखिएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एड़ी की सूक्ष्म योगिक क्रिया आपके सामने चल रही है। आप देखिए सूक्ष्म योगिक क्रिया है ये हमारे, देखिए आर्थराइटिस हो जाता है जिससे हम चल नहीं पाते, हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि हम सीधे ठीक से नहीं चल पा रहे। तो जब ये आसन करते हैं हम सूक्ष्म योगिक क्रिया, तो हमारी जो एड़ी की जॉइंट है वो खुल जाती है हमारी। तो ये हमने अभी पंजे और एड़ी की सूक्ष्म योगिक क्रियाएं कर ली है। अब हम वज्रासन में आ जाते हैं आराम से, धीरे धीरे वज्रासन में हम आ जाएंगे, आराम से आएंगे, सहज भाव से काम करना होता है, धीरे धीरे सहारा लेते हुए, कहीं जर्क ना पड़े, आराम से हम वज्रासन में बैठ के दोनों हाथों को आप आगे रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन की सामने की तरफ देखेंगे, हाथ हमारे आराम से सामने रखेंगे घुटनों पर, बिल्कुल हमारी रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल हमारा जो है पूरा स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, कमर सीधी रहेगी, सामने की तरफ देखते हुए। अब हम आगे की तरफ को अपनी गर्दन को बेंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे गर्दन को केवल बेंड करना है और पोस्चर धीरे धीरे। अब सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, फिर पीछे की तरफ चले जाएंगे, नॉर्मल आने के बाद पीछे जाएंगे हम, फिर नॉर्मल आ गए, उन्हें सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ गर्दन झुकाएंगे, रुकेंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, फिर पीछे की तरफ बेंड करेंगे गर्दन को, थोड़ी देर रुकेंगे, जितना आप पीछे बेंड कर सकते हैं, पूरी कमर सीधी रहेगी, आसमान की तरफ देखेंगे, फिर नॉर्मल आ जाएंगे। इस तरह के क्रम आपको करने हैं घर पे। अब हम गर्दन को लेफ्ट और राइट की तरफ करेंगे। अब गर्दन को पहले सांस भर लेंगे अच्छा सा नॉर्मल पोजीशन में, सांस भरने के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट शोल्डर की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट शोल्डर के नजदीक लेके जाने की कोशिश करेंगे। वहां कुछ देर रुकेंगे, पूरा शरीर सही सीधा रहेगा, केवल गर्दन आपकी मुड़ेगी लेफ्ट की तरफ, थोड़ा रुकेंगे, फिर सांस भरते हुए सामने की तरफ बुलाएंगे गर्दन को, फिर सांस को पुनः छोड़ते हुए राइट की तरफ ले जाएंगे गर्दन को। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, हमने देखे कंधे को उठा लेते हैं ऊपर, कंधा नहीं उठाना है मित्रों, आपको कंधा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, केवल गर्दन ही आपकी चलेगी। इसमें गर्दन को कोशिश करना है, आपका राइट, आपका जो ईयर है, आपका जो कान है, कर्ण, ये आपके राइट शोल्डर की टच होने की कोशिश करें, लेकिन याद रखिए जबरदस्ती नहीं करनी है, इसे जर्क लग के कोई भी नर्व डैमेज हो सकती है,
क्योंकि लिगामेंट डैमेज हो सकती है। सहज भाव से आसन करने में तो आपको सांस लेते हुए सामने आ जाएंगे। ये आपका क्रम रहा लेफ्ट और राइट का। एक बार पुनः आपको यही क्रम करके दिखाएंगे हमारे साथी जी, लेफ्ट और राइट का क्रम गर्दन का। अब तीसरा चरण गर्दन की सूक्ष्म योगिक क्रिया का, पूरी गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और देखिए प्रारंभ करेंगे आसमान की तरफ देखते हुए, लेफ्ट जाएंगे, धीरे धीरे गर्दन नीचे आएगी, धीरे धीरे गर्दन राइट की तरफ आ रही है, गोलाकार गर्दन घूम रही है, आसमान की तरफ देखते हुए गर्दन को फिर वापस नॉर्मल स्थिति में ले आएंगे। ये एक चरण हुआ। अब ऐसा ही चरण एंटी क्लॉकवाइज आपके सामने किया जा रहा है। अभी आपने गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाया, अब एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएंगे। एक बार अगले क्रम में कंधे की सूक्ष्म योगिक क्रिया करेंगे। देखिए हमारे कंधे हैं, कितना हम इससे काम लेते हैं कंधों से। कंधों की बिल्कुल लचीला होना चाहिए। अब देखिए पूरा कंधा, सबसे ज्यादा कंधे का होता है लचीलापन। सबसे बड़ा जॉइंट, जबरदस्त जॉइंट है कंधे का, हिप जॉइंट, ये जबरदस्त है क्योंकि इनको चारों तरफ घूमना होता है। तो कई बार शोल्डर है ना, फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं, ठीक है, तो इससे हम कुछ नहीं काम कर सकते। इसके लिए हमें शोल्डर्स के जॉइंट्स को खुला रखना है, लचीला रखना है। तो उसके लिए दोनों हाथों को साइड में फैला लेंगे और धीरे धीरे उंगलियों को, 5 उंगलियों को मिलाते हुए कंधों पर रख लेंगे मोड़ के। आप देखिए अब इसमें आपको घुमाना है, पूरा हाथ को कोहनी से लेके हाथ को घुमाना है, जैसे आपके योगाचार्य जी घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोहनियों को आपको घुमाना है, देखिए है ना, आपके सामने कोहनी गोलाकार क्रम में कोहनी से लेके पूरा। और इससे शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट बढ़ रहा है, शोल्डर जॉइंट की एक्सरसाइज हो रही है। ये इसको सूक्ष्म योगिक क्रिया कहते हैं, क्योंकि यह क्रियाएं हमारी जो जॉइंट्स, जिनको हम सूक्ष्म कहते हैं, अंदर सूक्ष्मता है इनमें। जॉइंट्स में टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं। शोल्डर जॉइंट बहुत बड़ा जॉइंट है, फ्रोजन शोल्डर से हम कुछ कार्य नहीं कर पाते। ये एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारे शोल्डर सही रहते हैं, लचीले रहते हैं, इनकी स्टिफनेस दूर हो जाती है। अब इस क्रम के बाद हमारे आसन शुरू होंगे। बैठने के क्रम के आसन स्टार्ट करेंगे। हम इसी वज्रासन में बैठे हुए हैं। जिस तरह हम बैठे हैं इसका भी एक महत्व है। ये पोज है, इसका नाम है वज्रासन। वज्र की तरह देखिए स्ट्रांग हो जाता है हमारा शरीर, हम वज्र की तरह शक्तिशाली हो जाते हैं इस आसन से। स्ट्रेट बैठ जाते हैं हम। हमारी जंघाएं, हमारी ये सारी जंघाएं, हमारी पिंडलियां, ये सब शक्तिशाली बनते हैं। और हमारी स्पाइनल कॉर्ड पर भी बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है इसका। हमारी कमर है, ये सारी लचीली हो जाती है इससे। और इससे भी एक और फायदा बहुत बड़ा जो है आपको बताना चाहेंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि यही एक आसन है जो खाने के बाद किया जाता है। हमने पूर्व में निवेदन किया था कि आसन खाली पेट किए जाते हैं, लेकिन यही वज्रासन ही एकमात्र आसन है जो खाने के बाद, खाना खाने के बाद किया जाना चाहिए। जब हम इस आसन को खाने के बाद करते हैं, 5 से 10 मिनट तक बैठेंगे, तो आपको अपने आप मालूम हो जाएगा कि जो खाना आपने खाया था वो आराम से पचना प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि इस पोस्चर में बैठने के बाद जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, यहाँ पर जो ये ऑर्गन्स बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में हो जाते हैं, और जिससे कि खाना पचाने में उनको सहायता मिलती है। डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी नॉर्मलिटी रहती है, जहाँ उनकी पोजीशन है वो सही स्थिति रहती है, और जो हमारे मूवमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्शंस इसको कहते हैं इंटेस्टाइन की, वो बिल्कुल नॉर्मल रूप से चलते रहते हैं। तो हमारा खाना पाचन की जो क्रिया है, खाने को पचाने की जो क्रिया है, वो क्रिया बड़ी सुचारू रूप से चलती है, और अपने आप ही बिल्कुल आपको 10 मिनट के बाद बड़ा अच्छा महसूस होगा। तो खाने के बाद
आप कई बार कहते हैं घूमने चलो, ये चलो। खाने के बाद घूमना फिरना नहीं है आपको। खाने के बाद हमारे पेट को आराम चाहिए, कुछ काम नहीं करते खाने के बाद। कोशिश करें 5 से 10 मिनट इस आसन पर बैठें। तो ये आसन वज्रासन है, इसके बहुत सारे फायदे हैं जो हमने आपको बताए। अब इसी आसन में बैठे बैठे अगला क्रम हम आगे बढ़ाते हैं, अर्ध उष्ट्रासन। थोड़ा सा हम हथेलियों का सहारा लेते हुए हम अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। घुटनों के बल पर हम थोड़ा शरीर को ऊपर की तरफ ले आएंगे और अर्ध उष्ट्रासन करने के लिए हाथों को पीछे की तरफ लगा देंगे घुमाते हुए, जिससे हम सहारा लेंगे और धीरे धीरे सांस छू। देखिए आप पीछे लगा देंगे, थोड़ा सा कहीं लगाना नहीं है आपको, केवल ये हमने हथेलियों से सहारा लिया अपनी कमर का और अपने शरीर को कोशिश किया जितना आसमान की तरफ देख सकते हैं, कोशिश करेंगे वहां रुकने की और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। वापस आ जाएंगे उसी क्रम में नॉर्मल। यही क्रम दोबारा से आपके सामने रिपीट किया जा रहा है। यह अर्ध उष्ट्रासन है। अर्ध उष्ट्रासन से हमारे लंग्स शक्तिशाली बनते हैं, हृदय संस्थान शक्तिशाली बनता है, हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसका फंक्शन नॉर्मलाइज होता है, ग्रीवा, मस्तिष्क, चेहरा, कंधे, इन सभी का ये बहुत ही उत्तम आसन है। और हमारी स्पाइनल कॉर्ड लचीली रहती है इससे। हम जानते हैं हम तब तक यूथ रहते हैं, तब तक जवान रहते हैं जब तक हमारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहती है और लचीली रहती है। तो इस आसन से हमें सहायता मिलती है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी बड़ा अच्छा प्रभाव डालता है। जिनको ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है वो उष्ट्रासन तक ही रुक सकते हैं, इस अर्ध उष्ट्रासन तक ही। इसके बाद आता है उष्ट्रासन, उसका पूर्ण क्रम। जो उष्ट्रासन हम बता रहे हैं अगले क्रम में, वे हार्ट पेशेंट और बीपी के पेशेंट को नहीं करना है। यदि आप नॉर्मल है तो उष्ट्रासन सहज भाव से कर सकते हैं। इसमें धीरे से हम हाथों को घुमाते हुए आराम से पीछे एड़ियों से हम पकड़ते हुए सहारा लेते हुए और अपने शरीर को बिल्कुल बेंड कर देते हैं पूरी तरह से पीछे की तरफ, और हम एकदम एंगल बनाते हुए पूरा आसमान की तरफ देखते हैं और अपने नीचे से शरीर को ऊपर की तरफ, पेट को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। जितना हम पेट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उतना ही इसका इफेक्ट बहुत अच्छा दिखेगा आपको। पेट के ऑर्गेन्स, उदर के ऑर्गेन्स शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, हमारे कंधे मजबूत बनते जा रहे हैं, थायराइड ग्लैंड हमारा एक्टिवेट हो रहा है। लंग्स के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। लंग्स हमारे शक्तिशाली बनते हैं मित्रों इस आसन से। लंग्स हमें शक्तिशाली बनाने हैं आज के समय में। लंग्स आर द गेट वे टू हेल्थ। लंग्स हमारे गेट वे हैं हेल्थ के लिए, प्रमुख द्वार है हेल्थ के लिए। क्योंकि लंग्स सही हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, प्राणवायु मिलेगी। जब ये प्राणवायु लंग्स अच्छी तरह ग्रहण कर पाएंगे तभी रोगों से लड़ पाएंगे, तभी कोरोना से जीत पाएंगे हम। क्योंकि लंग्स के अंदर जब कोरोना अगर आ गया तो हमारे लंग्स जब शक्तिशाली होंगे तो हमारे जो प्रोटेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स हैं वो सीधे के सीधे आराम से इसको कोरोना को भगा सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं और हम शक्तिशाली बने रहेंगे। तो ये आपका उष्ट्रासन था। एक क्रम दोबारा से फिर रिपीट किया जा रहा है आपके सामने उष्ट्रासन का, उसी तरीके से जैसे अभी आपने देखा। इसमें आप देखिएगा कंधे शक्तिशाली बनते हैं उष्ट्रासन से। पूरा कर्व स्पाइनल कॉर्ड बहुत लचीली हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो भी स्टिफनेस थी वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रेशर पड़ रहा है, स्ट्रेच हो रहे हैं सारे ऑर्गेन्स, तो इनके अंदर जो कंजेशन था, शिथिलता आ गई थी डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स के अंदर, वो सारी शिथिलता हमारी दूर हो जाती है, नॉर्मेलिटी आ जाती है। जो अंग अवयव हमारे कमजोर पड़ गए थे डाइजेस्टिव सिस्टम के,
भी हमारे बिल्कुल सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। तो इस और लंग्स का मैंने बताया आपको कि लंग्स हमारे शक्तिशाली बनते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, लंग्स का के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ ब्लड पहुँच रहा है समझ लो हमारे फौजी सैनिक जो वाइट ब्लड सेल्स के माध्यम से हमारे फौजी सैनिक हैं, ये हमारा जो भी रोग के कीटाणु हैं उसको आराम से मार गिराते हैं। तो ये हमारा हुआ ऊष्टासन। नॉर्मल पोजीशन में हम आ जाएंगे। अब वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। इसी क्रम को बढ़ाते हुए आगे शशांक आसन करेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथे खुले हुए और मस्तक को, मुखमंडल को पृथ्वी पर लगा देंगे। मस्तक पृथ्वी पर आ चुका है हमारा, हाथ आगे फैले हुए हैं हमारे। ये आसन हमारे स्ट्रेस को दूर करता है। स्ट्रेस को दूर करने में ये बहुत ही उत्तम आसन है। हमारा डिप्रेशन दूर हो जाता है इस आसन से। हमारे जो हरी भरी एंजाइटी जो है लाइफ में, हरी भरी एंजाइटी है, वो भी धीरे धीरे हमारी समाप्त होती रहती है और हम नॉर्मलिटी की तरफ आ जाते हैं। एग्रेशन कम होने लगता है, विल पावर स्ट्रांग होने लगती है हमारी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है हमारा। इसके साथ ही साथ दूसरा प्रभाव है इसका डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ऊपर। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। हमारी डाइजेस्टिव क्रिया, हमारी पाचन क्रिया शक्तिशाली बनती है, डाइजेशन को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे पाचक रस और हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो अच्छे होने लगते हैं। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। आराम से दोनों हथेलियों को जंघा के ऊपर रख देंगे, नॉर्मल। अब इसी क्रम को फिर दोबारा से दोहराया जाएगा आपके सामने। दोबारा देखिएगा, यह शशांक आसन है। शशांक आसन से हमारा स्ट्रेस दूर होता है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है, मस्तिष्क के अंदर जो तनाव है वो दूर होता है। तो हम अपना जीवन शांति से, पीस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, कामनेस ऑफ माइंड, हमारे मन के अंदर, हमारा मन के अंदर तनाव रहता है ज़्यादातर, आप देखते हैं मॉडर्न लाइफ का। लेकिन जब ये आसन करते हैं तो हमारा मन, शरीर, मस्तिष्क सब कुछ तनाव रहित हो जाता है, स्ट्रेस दूर हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। जब नीचे कुछ देर आराम से हम नीचे हो जाते हैं तो हम अपने आप ही नॉर्मल स्थिति में रहते हैं, तो अपने आप स्ट्रेस दूर होता रहता है, आप देखिएगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बहुत शक्तिशाली बनते हैं। धीरे धीरे हम सांस लेते हुए अब वापस आ रहे हैं, नॉर्मल आ जाएंगे। हाथों को, अपने हथेलियों को वज्रासन बैठने की मुद्रा में बैठ जाएंगे। ये रहा हमारा शशांक आसन। इसके बाद अंतिम आसन बैठने का है मंडूक आसन। मंडूक आसन में हथेली को बंद कर लेंगे, मुट्ठी बना लेंगे दोनों हाथ की। दोनों मुट्ठियों को ऐसे लेते हुए पेट, जो नाभि स्थल है, उससे टच कराते हुए प्रेशर डालते हुए, और पहले तो प्रेशर डालने से पहले सांस अंदर भर लेंगे और नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए। जैसे शशांक आसन में गए थे नीचे, बिल्कुल वैसे ही जाएंगे। फर्क इतना, हथेलियों से अपने नेवल रीजन को दबाते रहेंगे और दृष्टि सामने की तरफ आपकी रहेगी। कोशिश करें कि दृष्टि जितनी सामने हो सकती है उतना अच्छा रहेगा। ये नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है आपका। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी शिथिलता आ गई थी, जो शिथिल हो गया था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको बहुत अच्छी मजबूती प्रदान करता है ये आसन। कुछ देर रुक के धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। अब एक बार पुनः इस आसन को रिपीट किया जा रहा है आपके सामने। मंडूक आसन लंग्स के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। लंग्स को शक्तिशाली बनाता है ये आसन। जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है,
लंग्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा नासिका से स्टार्ट होके एनस तक जाता है। पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नासिका से लेके लंग्स तक जा रहा है। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारा माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाता है। तो ये दोनों सिस्टम पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है इस आसन से। जब कुछ देर जब नीचे रुके थे हम, आपने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर कितना उत्तम प्रभाव पड़ रहा है। इससे लिवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स सभी शक्तिशाली बनते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है इंटेस्टाइन की, और हमारा भोजन का पाचन क्रिया बहुत ही श्रेष्ठतम की तरफ जाती है, बहुत श्रेष्ठ क्रिया हो जाती है। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे सामान्य स्थिति में। अब हम इसके बाद लेटने वाले आसन करेंगे। उत्तान पादासन करने के लिए हम सीधे लेट जाएंगे धीरे से। उत्तान पादासन के लिए हम सीधे लेट जाएंगे आराम से, बिल्कुल सीधे लेटेंगे। बहुत धीरे धीरे लेटना है, आराम से लेट जाएंगे। उत्तान पादासन। हथेलियां साइड में रहेंगी हमारे। कमर से लेके नीचे का पोर्शन बिल्कुल सीधे, पैरों को 45 डिग्री एंगल पर ऊंचा उठा के रखना है। धीरे धीरे पैरों को ऊपर ले जाएंगे, 45 डिग्री एंगल पर रोक के रखेंगे जितना रोक सकें। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यह पेट की चर्बी घटाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ आसन है। आप कवर ओवरवेट हैं तो इस आसन का 20, 30, 40, 50 बार अभ्यास करेंगे तो आपके पेट की, बटक्स की, थाइस की जो बढ़ी हुई चर्बी है वो धीरे धीरे कम होनी प्रारंभ हो जाएगी और आपकी बॉडी की शेप नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल यह आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी बहुत उत्तम प्रभाव डाल रहा है। डाइजेस्टिव जूसेज अच्छे सीक्रेट होते हैं, भोजन की पाचन क्रिया है वो उत्तम होनी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, मैदा का सेवन करते हैं, बेसन और मैदा से बने हुए हम तले भुने हुए जो फास्ट फूड है वो ले रहे हैं, जिससे हमारी इंटेस्टाइन के अंदर मैदा और बेसन चिपका रहता है। तो हमारे जो रस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट नहीं हो पाते। इस आसन से प्रभाव पड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, प्रभाव पड़ता है हमारे थाइस के ऊपर, और भी जो हमारे किडनी है, इन सभी लोअर ऑर्गन्स के ऊपर और एब्डोमेन के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और हमारा सबसे अच्छा प्रभाव ये है कि जब हम वेट मैनेजमेंट के लिए करते हैं तो यह आसन सर्वश्रेष्ठ आसन है, वन ऑफ द बेस्ट आसन हम इसको कह सकते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए, एक्स्ट्रा चर्बी घटाने के लिए। अब इसके अगले क्रम में पवन मुक्तासन हम करेंगे। पवन मुक्तासन करने के लिए पहले एक पैर राइट जो लेग है हमारा, राइट लेग को ऊपर ले आएंगे थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए, घुटने से मोड़ते हुए, और जो दोनों हाथों की हथेलियों को ये पंजे मिला के, उंगलियों को आपस में मिला के और बिल्कुल इससे दबाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ चेस्ट को दबाने का प्रयास करेंगे। पेट और चेस्ट इससे दोनों दब रहे हैं। जो हमारा लेफ्ट लेग है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, राइट लेग को हम दबाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको कोशिश कर रहे हैं छाती से लगाने की। हमारे घुटने के ऊपर हमारी जो दोनों हथेलियों बंधी हुई, जो उंगलियां फंसी हुई, वो उससे हम प्रयास कर रहे हैं, दबा रहे हैं हम। राइट लेग घुटने के, राइट घुटने के ऊपर हमारा देखिए दोनों हथेलियां रखी हुई हैं, उंगलियां फंसी हुई, हम दबा रहे हैं। दबा क्यों रहे हैं कि जिससे हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें जब दबाव पड़ेगा तो हमारे जो शिथिल पड़ गए थे ऑर्गन, इनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था किसी कारण से, इनमें ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने लगेगा। धीरे धीरे हम देखिए। और इसका अगला चरण है धीरे से अपने मुंह को ऊपर से बेंड करके घुटने से इसको चूम लेंगे।
घुटने को दबाना है, जितना अधिक दबाएंगे उतना प्रभाव अच्छा पड़ेगा। ये बटक्स, थाइस, कमर, इन सब में लचीलापन आ जाएगा, कमर में लचीलापन आएगा और हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है इन रीजन्स का वो कम हो जाएगा। धीरे धीरे पीछे की तरफ वापस जाएंगे, धीरे धीरे हाथों को और पैरों को सामान्य स्थिति में ले आएंगे। अब यही चीज हम लेफ्ट लेग से करेंगे। बायां पैर, लेफ्ट लेग हम वो मोड़ लेंगे घुटने से, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे एक दूसरे के अंदर, घुटने पर ले जाएंगे, प्रेस करेंगे और प्रेस जब पूरा हो जाए धीरे से अपने मुखमंडल से इसको चूमेंगे। स्पर्श करा दीजिए, घुटने को स्पर्श कराना है मुंह से, थोड़ा सा उठाते हुए, गर्दन से थोड़ा सा उठाते हुए प्रेस रहेगा। सबसे मेन इसका फिलॉसफी क्या है इसके पीछे कि प्रेशर डालेंगे हथेली से। इससे देखिए एक्स्ट्रा फैट आपका अपने आप रिलीज हो जाएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम सशक्त हो जाएगा आपका। धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल स्थिति में धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब इसका तीसरा क्रम है दोनों पैरों से इकट्ठा, दोनों पैर मिला लेंगे आपस में। अब दोनों पैरों को मोड़ लेंगे घुटनों से, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लिया जाएगा। दोनों हथेलियां आपस में मिला के अच्छी तरह से प्रेशर डालेंगे और पूरा मुखमंडल से इनको टच करा देंगे। थोड़ा सा उठेंगे पीछे से और टच करा देंगे। अब दबा के रखेंगे और रोल करेंगे बॉडी को। ये हमारी पीठ की मसाज हो रही है, बांध के रखेंगे अपने आप को। हमारी पीठ की मसाज हो रही है, ये देखिए बैक की मसाज भी चल रही है, आसन भी चल रहा है, ऑर्गन शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। रीढ़ की मसाज हो रही है, रीढ़ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑर्गन्स पर दबाव पड़ेगा। जो भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारी निकल रही हैं नर्व्स, जिसको हम कहते हैं, ये नर्व्स होती हैं जो एनर्जी लेके जाती हैं। ये एनर्जी बड़ी अच्छी लेके जाएंगी, इनके अंदर जो अवरोध हैं वो दूर हो जाएंगे, ये शक्तिशाली बनेंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा बनेगा, जितना ज़्यादा रोल करेंगे उतना अच्छा होगा। धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, धीरे धीरे आराम से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। हम आराम से थोड़ा सा हम 1 मिनट आराम करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल मुद्रा में लेट जाएंगे, शवासन भी कह सकते हैं इसको। आराम से लेट जाएंगे, पैरों में थोड़ा फासला दे लेंगे, पैरों और कमर के बीच में थोड़ा फासला दे लेंगे। आराम से नेत्र बंद करके 1 मिनट का शवासन करेंगे। अब अगला आसन है अर्ध हलासन। इसमें दोनों पैर मिला लेंगे और कमर से नीचे पैरों को उठाते हुए धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे, यहां रोक देंगे। ये सांस भरते हुए हम यहाँ आए थे और यहाँ रोक देंगे। यहाँ इसलिए रोक रहे हैं कि इससे प्रभाव पड़ेगा पेट के ऊपर। थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। जिनको हार्ट की ट्रबल रहती है उनके लिए अर्ध हलासन ही करना है, पूर्ण हलासन उनके लिए नहीं करना है। धीरे धीरे पैरों को वापस ले जाएंगे नीचे की तरफ। ये क्रिया थी हमारी अर्ध हलासन की। अब हम करेंगे पूर्ण हलासन, यानी पैरों को पीछे की तरफ ले जाएंगे जितना संभव हो सके यथाशक्ति। धीरे धीरे पैरों को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे, सांस भरते हुए। सांस भरते हुए पैर पीछे की तरफ सीधे रहेंगे, घुटने से मुड़ेंगे नहीं पैर। कोशिश ये की जाएगी जितना हम पीछे ले जाएं उतना ले जाने का प्रयास करेंगे हम। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसमें जर्क नहीं लगना चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई जर्क ना लगे। धीरे धीरे पैरों को जमीन पर रख देंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। 10 सेकंड के बाद यही क्रिया फिर दोबारा आपके सामने दिखाई जाएगी। यह आसन का प्रभाव डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर पड़ता है।
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन शक्तिशाली बनते हैं, लंग्स शक्तिशाली बनते हैं, और साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही श्रेष्ठ आसन है ये। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाता है, चेहरे पर कांति आती है, मस्तिष्क के विकार दूर होते हैं, चेस्ट रीजन भी नॉर्मलाइज हो जाता है। बहुत ही श्रेष्ठ आसन है। इसका दोबारा से अब अभ्यास किया जा रहा है आपके सामने। धीरे धीरे पैर ऊपर जाएंगे। देखिए आचार्य जी करके दिखा रहे हैं आपको। हलासन, पूर्ण हलासन है ये। जितना आप जा सकते हैं उतना जाएंगे। किसी आसन के साथ आप ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना यथाशक्ति रोक सकते हैं उतना रोकेंगे। और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो ये आपका हलासन रहा। अब हम धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। यहीं से हम पेट के बल लेट जाएंगे। धीरे से आराम से हथेलियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद पहला आसन शलभासन है। इसमें धीरे धीरे पैरों को ऊपर पीछे से उठाएंगे और हाथों को आगे से फैला लेंगे अपने कानों के बराबर से। तो पीछे से पैर उठ रहे हैं और आगे से हाथ उठ रहे हैं। ये शलभासन है। सामने की तरफ देखेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों हथेलियों के ऊपर अपना मस्तक रख देंगे। थोड़ा आराम मुद्रा में आ जाएंगे। इससे पेट पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह आसन पेट के लिए भी और स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ साबित है। इससे पेट के जो भी विकार हैं वे दूर होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कंजेशन है, स्पाइनल रीजन के अंदर जो कंजेशन है नर्व्स का, वो दूर होता है। स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल बनती है। दोबारा से इस आसन का अभ्यास एक बार पुनः किया जा रहा है। आचार्य जी आपको इस आसन का अभ्यास करके फिर दिखाएंगे। पीछे से पैर उठ रहे हैं, आगे से हाथ उठ रहे हैं। हमारा बॉडी का पोस्चर बड़ा सुंदर बन जाता है इस आसन के नियमित अभ्यास से। लंग्स हमारे शक्तिशाली बनते हैं। हार्ट या ब्लड प्रेशर के पेशेंट को यह आसन नहीं करना चाहिए। यह आसन हार्ट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नहीं करना है। यदि आप नॉर्मल हैं तो इस आसन को कीजिए। इसके करने से बैक प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी आपकी, स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल हो जाएगी और पेट के उदर के सारे विकार दूर हो जाएंगे। आप नॉर्मल स्थिति में आके आराम की मुद्रा में आ जाएंगे। अगला आसन भुजंगासन। भुजंगासन के लिए साइड में अपनी हथेलियों को लगा देंगे। कंधे की सीध में अपनी हथेली लग जाएंगी और धीरे धीरे नाभि के ऊपर का पोर्शन, नाभि से लेके सब ऊपर का पोर्शन सर्प आकार की तरह में बन जाएगा। धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे इस पोर्शन को। सांस लेते हुए ऊपर गए थे हम और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर गए थे हम और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। नॉर्मल स्थिति में आके एक बार मस्तक लगा देंगे अपना दोनों हथेलियों के ऊपर। 10-20 सेकंड का रिलैक्स करके एक बार पुनः यह आसन का अभ्यास किया जाएगा। यह आसन हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में बड़ा आराम मिलता है इससे। जो नेक रीजन में दर्द होता है, रेगुलर हम कंप्यूटर्स के ऊपर काम करते हैं आज के युग में, तो ये हमारी नेक में पेन हो जाता है, जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए यह बहुत ही उत्तम आसन है। साथ ही कमर, स्पाइनल कॉर्ड सब लचीली बन जाती है इस आसन से। एक बार पुनः इसका अभ्यास किया जाएगा आपके सामने। भुजंगासन का अभ्यास किया जा रहा है पुनः
आप देखिए ध्यान से, आपको नेवल रीजन, नाभि से लेके पूरा शरीर बेंड कर देना है ऊपर की तरफ। शरीर ऊपर की तरफ बेंड कर देंगे, कोशिश करेंगे आसमान की तरफ देखने का। कुछ देर रुकते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे। यह आसन के आराम करने का तरीका होता है। दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं और उस पर मस्तक को रख दिया जाता है। इससे आपको रिलैक्स होता है। हर आसन के बाद आपको आराम करना होता है। अब इसी क्रम में लेटने वाले आसनों में यह अंतिम आसन होगा हमारा धनुरासन। धनुरासन में पीछे से पैर को मोड़ते हैं और आगे से दोनों हाथों को बगल से ले जाते हुए एड़ी या पंजे को पकड़ लेते हैं और आगे से अपना शरीर ऊपर उठाते हैं और पीछे से पैर ऊपर उठाए जाते हैं। धनुष के तरीके से हमारा शरीर हो जाता है। स्ट्रेच करते हैं, हाथों से पैरों को स्ट्रेच कर रहे हैं, नीचे से शरीर को ऊपर उठाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सामने की तरफ देखते हैं, बेंड करते हैं पूरी तरह, देखिए स्ट्रेच करते हैं बहुत ज्यादा, पूरा धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। ये हमारा धनुरासन का क्रम था पहला। 10 सेकंड के रिलैक्स के बाद यही क्रम दोबारा आपके सामने होगा। यह आसन का डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये वन ऑफ द बेस्ट आसन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। मयूरासन, चक्रासन और धनुरासन, ये तीनों आसन ऐसे हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, सर्वश्रेष्ठ प्रभाव पड़ता है। यही आसन एक बार पुनः योगाचार्य जी करके दिखाएंगे आपको। आप देखिएगा, पीछे से पैर मुड़ेंगे, आगे से जो है पूरा पोर्शन ऊपर का उठेगा। नेवल रीजन, केवल नाभि क्षेत्र का रीजन ही जमीन पर रहेगा, बाकी पोर्शन ऊपर उठ जाएगा। हमारी स्पाइनल कॉर्ड लचीली होती जाती है इस आसन के नियमित अभ्यास से, और हमेशा हम यंग रहते हैं। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड मुड़ गई और स्टिफनेस आ गई तो हमारा यूथ चला जाता है, चेहरे पर कांति छाई रहती है लगातार। इस आसन के नियमित अभ्यास से हमारा चेहरा एकदम तेजो में हो जाता है, ब्राइटनेस आ जाती है चेहरे पर, चेहरा चमकदार हो जाता है। तो हमारा पेट, उदर और पीछे का, बैक और फ्रंट, दोनों तरह के ऑर्गन्स इससे पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ आसन है ये। स्पाइनल कॉर्ड में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल लचीली रहती है, उसकी स्टिफनेस नहीं आ पाती। हमारे ये पूरा रीजन, कंधे, ये सारे जॉइंट मजबूत हो जाते हैं, थाई रीजन मजबूत हो जाता है, लोअर एब्डोमेन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। अब ये हमारा अंतिम आसन था। इस आसन के बाद हम एक क्रिया करेंगे, सीधे लेट जाएंगे पीठ के बल, धीरे से शवासन की क्रिया होगी। सारे आसन समाप्त हो गए हैं आज के क्रम में। शवासन की क्रिया में पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला रख लेंगे, हाथ और कमर के बीच में थोड़ा फासला रख लेंगे, साइड से थोड़े से हाथ हमारे दूर रहेंगे, हथेलियां आसमान में रहेंगी, नेत्र बंद हो जाएंगे। धीरे से नेत्रों को बंद कर लें। यह शवासन की क्रिया जब ब्लड प्रेशर का रोगी करता है तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि इसमें हम अपने मन को, शरीर को रिलैक्स करने का प्रयास करते हैं। तो आप शवासन कर रहे हैं और जैसा हम बोल रहे हैं वैसा आप सोचिएगा। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स, रिलैक्स। जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आती जाती सांसों पर ध्यान दे रहे हैं। आराम से सांस आ रही है, आराम से सांस बाहर निकल रही है। आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस आ रही है,
सांस जा रही है। धीरे से अपना ध्यान पैर के अंगूठे से लेके और सर तक ध्यान आगे पीछे दौड़ाइए। पैर के अंगूठे, पैर की उंगलियों को देखिए बंद आंखों से। अपने पैरों को निहारें बंद आंखों से। अपने पेट और चेस्ट को निहारें। अपने मुखमंडल को निहारें बंद आंखों से। अनुभव करें मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। सूर्यदेव से इनमें शक्तियाँ आती जा रही हैं। सूर्यदेव की रश्मियों के माध्यम से मेरा शरीर शक्तिशाली हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे से दाहिनी करवट आ जाए। बाईं हथेली को दाईं तरफ ले लें और धीरे से बैठ जाएं। नेत्र बंद रखें। नेत्र बंद रखे रखे आराम से बैठ जाइए। आराम से बैठ जाइए और अपनी हथेली को रगड़ेंगे और धीरे से अपने नेत्रों से इसको स्पर्श कराएंगे और धीरे से अपने नेत्र खोल लेंगे। ये आपका शवासन था। ये एक मेडिटेशन का पार्ट था। इस शवासन से हम अपने शरीर और मन को हल्का करते हैं, रिलैक्स करते हैं और महसूस करते हैं कि हम बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं, शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। ये एक मेडिटेशन का पार्ट था। इसी को आगे ले जाके योग निद्रा का युग बन जाता है। योग निद्रा में हम धीरे धीरे अपने भाव ऐसे लेते हैं कि हम रिलैक्स हो रहे हैं और हमें आरामदायक स्थिति में पहुंचा देता है हमारा शरीर। जो हमारी सोच है उससे हमें बड़ा आराम मिलता है। हम रिलैक्स होते जाते हैं इस आसन से। शवासन बहुत ही उत्तम आसन है अपने शरीर मन को रिलैक्स करने के लिए। अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए हमारा अंतिम चरण प्राणायाम का है। 3 प्राणायाम करेंगे। पहले कपालभाति प्राणायाम आपके सामने किया जाएगा। ये हमारे आसनों के बाद अब प्राणायाम का क्रम है। इसमें 3 प्राणायाम किए जाएंगे आपके समक्ष, जो सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इनका नियमित अभ्यास आपको करना है। पहला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमको आराम से सहज भाव से कमर सीधी रखते हुए आलती पालती मार कर, जिसको सुखासन बैठ कहते हैं, उसमें बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को या तो गोदी में रख लें या घुटनों पर रख लें, जैसे सहज भाव में, जितना जिससे आपको आराम मिले कहीं भी हाथ रख लें, लेकिन सीधी कमर रखनी है, ये ध्यान रखना है। सहज भाव में बैठेंगे, शरीर रिलैक्स रहेगा। कपालभाति प्राणायाम में केवल सांस छोड़ी जाती है तेजी से। जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं, एब्डोमेन के मसल्स, उनको प्रेस करते हैं और प्रेस करते हैं, साथ साथ बाहर सांस छोड़ी जाती है। ये ध्यान रखना है। तो अब हम कपालभाति का प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें सांस अंदर अपने आप आ जाती है। हमें सांस अंदर आने पे न ध्यान देना है, न हम सांस को अंदर लाने का प्रयास करते हैं। केवल हमें ध्यान रखना है कि रेगुलर हमको सांस बाहर करनी है। तो हम कपालभाति का आपके सामने अभ्यास करने जा रहे हैं। सांस को पहले एक बार अंदर अच्छी तरह से भर लेते हैं प्रारंभ करने से पहले। अब कपालभाति प्रारंभ होगा आपके लिए। केवल सांस छोड़ी जाएगी तेजी से, जितना ज्यादा तेजी से छोड़े। इसमें आपने देखा कंधे नहीं उठने चाहिए। कई लोग करते हैं, हमने देखे हैं, कंधे ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं करना, कंधे नॉर्मल रहने चाहिए और केवल सांस को बाहर फेंकना। जितनी गति से, जितने फोर्स से आप सांस बाहर फेंकेंगे, इसका इफेक्ट मिलेगा। कपालभाति प्राणायाम से हमारे लंग्स शक्तिशाली बनते हैं। बहुत लंग्स कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, लंग्स क्लीन हो जाते हैं हमारे। और साथ ही साथ कपालभाति आप जानते हैं, हमारा जो पूरा मस्तिष्क है, भाति मानी सफाई, पूरे मस्तिष्क के अंदर जो साइनस प्रॉब्लम्स हैं और जो हमारी कोल्ड है, राइनाइटिस है, ये सारी चीज़ें, हमारी ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इन सभी रोगों में इस कपालभाति प्राणायाम से अत्यंत फायदा मिलता है। और साथ ही साथ जो पेट के ऑर्गन्स हैं वे भी बहुत शक्तिशाली बनते हैं।
और यदि हमें चर्बी पेट की घटानी है तो उसके लिए भी ये बहुत श्रेष्ठ आसन है। इसको हम 100, 200, 500 बार तक करते हैं तो हमारे पेट की चर्बी, एक्स्ट्रा चर्बी घटती चली जाती है। और नॉर्मल पर्सन्स भी इसको रेगुलर करें तो हम पूरे शरीर में जो भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स हमारे नॉर्मलाइज हो जाते हैं और इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। तो ये कपालभाति प्राणायाम बहुत ही श्रेष्ठ प्राणायाम है। इसमें पेट को दबता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपने देखा पेट हमारा अंदर जा रहा है और सांस एकदम बाहर झटके, जहार फोर्सफुली सांस जा रही है बाहर। तो ये कपालभाति प्राणायाम का चरण हुआ। अगला प्राणायाम हमारा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में करते क्या है, हम आपको वैसे समझा दें शॉर्ट में। हम पहले दाएं नॉस्ट्रिल को बंद कर लेते हैं दाएं अंगूठे से, और अभी आप क्रिया नहीं करेंगे, केवल समझेंगे। और बाहीं नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस अंदर खींचा जाएगा। जब धीरे धीरे सांस खींचेंगे तो हमारे जो चेस्ट रीजन है वो एक्सपेंड होना चाहिए। चेस्ट रीजन जब एक्सपेंड होता है तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। लंग्स के जो मसल्स हैं, लंग्स के सेल्स हैं, जो एल्वियोलाई जिनको हम कहते हैं, अल्टीमेटली जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, वो एल्वियोलाई हमारे शक्तिशाली बनते जाते हैं इस प्राणायाम के साथ। और लंग्स एक्सपेंड होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब ये चरण पूरा हो जाता है, इनहेलेशन इसको कहते हैं, फिर हम अपनी उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेते हैं और राइट नॉस्ट्रिल खुल जाता है। तो जो सांस हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लिया था वह उसी गति से राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाता है। फिर हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और बाएं नॉस्ट्रिल से बाहर निकालते हैं। तो आपके सामने अभी हम एक क्रम करके दिखाते हैं। बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। धीरे धीरे सांस हम लेंगे और फिर दाएं नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। ये एक क्रम हुआ। एक क्रम और दिखाते हैं आपको दोबारा से। अब अगला क्रम, यही क्रम एक बार फिर पुनः करेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का क्रम था। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे मन में शांति की स्थिति स्थापित करता है, जिसको कहते हैं पीस ऑफ माइंड, कामनेस ऑफ माइंड। दोनों में हमें लाभ मिलता है। दोनों माइंड हमारा रिलैक्स होता है, माइंड के अंदर पीस आता है, माइंड के अंदर कामनेस आती है। हमारा माइंड हलचलों से भरा हुआ है, एग्रेशन से भरा हुआ है, तो इसमें रिलैक्स करने का, माइंड को आराम करने का मौका मिलता है इस आसन प्राणायाम से। ये एक मेडिटेशन का पार्ट है। जब हम आती जाती सांसों पर ध्यान देते हैं तो स्वतः ही ये मेडिटेशन बन जाता है। मेडिटेशन का तात्पर्य ये है कि मेडिटेशन के द्वारा हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाते हैं। तो जब सांस अंदर जा रही है तो हम भावना करते हैं कि जो इस वातावरण से हमें जो डिवाइन एनर्जी है वो सांस के माध्यम से हमारे अंदर जा रही है और हमें भी शक्तिशाली बना रही है। डिवाइन एनर्जी से डिवाइन एनर्जी से हम डिवाइन बनते जा रहे हैं। डिविनिटी हमारे अंदर आ रही है और जो हमारा सूर्य देव से जो हमारे अंदर किरणें आ रही हैं उससे हम शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। तो ये हम भाव करते हैं इस प्राणायाम में, तो ये मेडिटेशन का पार्ट बन जाता है। ये नाड़ी शोधन का दूसरा रूप है। इससे हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, लंग शक्तिशाली बनते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, और इस सिस्टम के साथ साथ जो हमारा जो नर्व्स जो पूरे शरीर में जा रहे हैं और जो हमारे ब्लड वेसल्स पूरे शरीर में जा रही हैं, उनकी सफाई हो जाती है, ये साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती हैं, उनकी ब्लॉकेजेस दूर हो जाती है। तो ये अनुलोम विलोम था। अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम है। इस भ्रामरी प्राणायाम को जब करते हैं तो हम नेत्र बंद कर लेते हैं, उंगलियां रख लेते हैं यहाँ अपने नेत्रों पर, अंगूठे रख लेते हैं, कान के छिद्र बंद कर लेते हैं अंगूठे से, और सांस पूरी गहरी भरने के बाद धीरे धीरे फिर हम सांस को छोड़ते हैं, भौरे की तरह गुंजन करते हुए, भौरे की तरह गुंजन की स्पीड, गुंजन की आवाज करते हुए गुंजन की तरह सांस छोड़ा जाता है और भावना की जाती है उसी गुंजन वाली आवाज पर।
ये भ्रामरी प्राणायाम था। एक क्रम और करेंगे सांस अंदर भर के। धीरे से नेत्र खोल लेंगे। ये भ्रामरी प्राणायाम हमारे स्ट्रेस दूर करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम है। ये भी मेडिटेशन का पार्ट है। भ्रामरी प्राणायाम में जब अपने अंदर की नेत्रों से हम देखते हैं तो हमारे सामने अलग अलग तरह का प्रकाश, अलग अलग तरह का, कभी वाइट कलर का, कभी रेड कलर का दिखता है। उसको ध्यान करें हम, कभी कमल का फूल दिखेगा आपको, तो इससे हमारा मन रिलैक्स होता है, माइंड का स्ट्रेस दूर होता है हमारा। तो ये तीनों प्राणायाम हमको प्रातःकाल अवश्य करने चाहिए। अब 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे हम। सीधे नेत्र बंद करके बैठेंगे। जैसा मैं आपको कमांड दूंगा वैसा आप सोचेंगे। 1 मिनट के मेडिटेशन के लिए नेत्र बंद कर लेंगे, दोनों हाथ गोदी में रख लेंगे, कमर सीधी करके नेत्र बंद करके बैठ जाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। भावना करें कि हमारे चारों तरफ ईश्वर का सुंदर उपवन है। हम ईश्वर द्वारा बनाए गए सुंदर एनवायरनमेंट में, सुंदर पर्यावरण में बैठे हुए हैं। चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षियों की आवाजें आ रही हैं, हमारे मन को शांत कर रही हैं। हमारा मन मस्तिष्क रिलैक्स होता जा रहा है। अपनी सांसों को नॉर्मलाइज करेंगे। आराम से सांस आ रही है, आराम से सांस जा रही है। भावना करें मैं ईश्वर की सबसे सुंदर कृति हूँ, मैं ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हूँ, मैं गॉड का एक अनुपम उपहार हूँ। मेरे गॉड ने, मेरे ईश्वर ने मुझे इस संसार में सुंदर बगीचे को और अधिक सुंदर बनाने के लिए भेजा है। मेरा कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्य को करने के लिए मुझे निरंतर मेरा गॉड फादर शक्ति देता जा रहा है। मुझे योग के माध्यम से एक गाइड मिल रहा है, मुझे गाइडेंस मिल रही है कि मुझे सबके बारे में अच्छा सोचना है। सब मेरे भाई बहन हैं, सब मेरे संबंधी हैं, सब मेरे जैसे ही हैं। मेरा जीवन एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हुआ है। मुझे स्ट्रेस नहीं लाना है। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्रता का सागर हूँ, मैं प्यार का सागर हूँ। मुझे इस संसार को बहुत सुंदर बनाना है। अपने विचार, सुंदर विचारों से, सुंदर कार्यों से मुझे इस संसार को बहुत सुंदर बचाना है। मेरा ईश्वर सदैव मेरे साथ है। मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा, मेरा गॉड हमेशा मेरे साथ है। रिलैक्स। मैं स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं कभी नेगेटिव चिंतन नहीं करूंगा। मैं पॉजिटिविटी से भरता जा रहा हूँ। सूर्य देव के माध्यम से, सूर्य देव की रश्मियों के माध्यम से मेरे अंदर सूर्य देव की रश्मियाँ आ रही हैं, मेरे रोम रोम में संव्याप्त हो रही हैं। प्राण सूर्य देव से मुझे प्राण वायु मिल रही है, सूर्य देव से मुझे प्राण का संचार हो रहा है और मैं तेजस्वी बनता जा रहा हूँ। मैं तेजस्वी हो चुका हूँ। मैं संसार का कार्य करूँगा, मैं ईश्वर का कार्य करूँगा। मेरा ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। मैं हमेशा हर हाल में खुश रहूँगा। मेरे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। मैं दुनिया का सबसे सुखी और खुशी इंसान हूँ, सबसे सुखी और खुश इंसान हूँ। हैप्पीनेस मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। खुश रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, नेत्र बंद रखेंगे, धीरे से स्पर्श कराएंगे हथेलियों से और धीरे से
परमात्मा का धन्यवाद करते हुए धीरे से नेत्र खोल लेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, आज आपने इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। हमारा कार्य पूरा हुआ, आज का वर्कशॉप पूरी हुई, जिसका उद्देश्य था कि आपको योग से जोड़ना। योग से जोड़ने का मतलब है कि हमने दुनिया के हर व्यक्ति से जुड़ गए। सब व्यक्ति, हर समाज, हर मानव हमारा अपना हो गया। हमारा ये वर्कशॉप सफल रहा। इस वर्कशॉप की सफलता के लिए मैं अपने साथी योगाचार्य जी को धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने समय दिया, इस योग को समझा। ये समाज का कार्य होता है मित्रों। इन्होंने समय दिया, अपना समय दान दिया, अपनी एनर्जी दी, अपने विचार दिए, अपनी प्रतिभा दी, अपनी स्किल इसमें लगाई। तो हम सभी ग्लोकल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने चांसलर साहब का, कि जिन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया, जिन्होंने हमें ये सुअवसर दिया कि हम इस वर्कशॉप को अवश्य कराएं। धन्यवाद के पात्र हैं प्रोफेसर प्रियदर्शनी जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने आज प्रातःकाल तो आए ही इस कार्यक्रम के लिए पिछले 5 दिन से प्रयास कर रहे हैं। इनके सभी के अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम सफल हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। Yoga is a light which once lit will never dim. Take a pledge on this day to be yourself. I thank you all to join us today for this workshop. Have a nice day. Stay healthy. Stay safe. Thank you all.